ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਿਕਸ ਬੁੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਟੈਟਿਕ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸੈਕੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਫੋਰਸਿਸ ਐਕਟਿੰਗ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਟੌਪਿਕ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2A ਕਰੀ ਸੀ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਔਖਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਪ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੁੱਛੋ ਇਹਦੀਆਂ। ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸੌਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ। ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇਹਦਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾਓ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ 2A ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੰਸੈਪਟ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪੇ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਐਂਗਲ ਅਲਫਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਥੀਟਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਥੀਟਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਐਂਗਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 2A ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 2B ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2B ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਉਲਟਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਫੋਰਸਿਸ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਫੋਰਸਿਸ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ F, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਆ ਸੀ, ਆ P ਆ Q। P ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਅਲਫਾ ਐਂਗਲ ਬੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜੋ, ਇਹ ਅਲਫਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਬੀਟਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲਓ। P ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਅਲਫਾ ਹੈ, Q ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਐਂਗਲ ਬੀਟਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਗਿਵਨ ਆ, ਫੋਰਸਿਸ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਪਾਂ P ਅਤੇ Q ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। P ਐਂਡ Q ਫੋਰਸਿਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ F ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਉਸ F ਸਿੰਬਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਬੁੱਕ 'ਚ F ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ R ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੁੱਕ 'ਚ ਸੇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਿੰਬਲ F ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ F ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ P ਅਤੇ Q ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ, ਉਵੇਂ ਜੇ F ਹੋਵੇ ਤਾਂ F ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਂਗੇ P ਅਤੇ Q ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ, ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, PQ ਵਾਸਤੇ F ਕੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ। PQ ਵਾਸਤੇ F ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਅਤੇ F ਵਾਸਤੇ PQ ਕੀ ਨੇ, ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਫਾਦਰ ਆਫ B ਆ, B ਕੀ ਆ, ਬੋਏ, ਤਾਂ A ਵਾਸਤੇ B ਸਨ, B ਵਾਸਤੇ A ਕੀ ਆ, ਫਾਦਰ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ। A ਵਾਸਤੇ B ਬੋਏ ਆ ਅਤੇ B ਵਾਸਤੇ A ਫਾਦਰ। ਉਵੇਂ
P ਤੇ Q वास्ते F की है रिजल्टेंट, तो F वास्ते P Q की ने कंपोनेंट्स, मतलब अपन ਨੂੰ F पता, ਆਪਾਂ ने F ਦੇ कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, कंपोनेंट्स फाइंड करने। ਇਹ ਆਪਾਂ आर्टिकल करना प्रूफ, आर्टिकल जिन्ने भी करांगे सारे इंपॉर्टेंट ने आर्टिकल, ये भी याद रखने ने, प्रूफ भी करने आर्टिकल के जो दे रिजल्ट है ना आप नूमेरिकल यूज़ करांगे, वो भी आपने याद करने। चाहे मैं स्टेटमेंट बोल रहा है, स्टेटमेंट तुसी भी देख लो तो मैं बोल रहा, ये स्टेटमेंट हैगी है जी, डिटरमाइन द कंपोनेंट्स ऑफ गिवन फोर्स अलोंग टू गिवन डायरेक्शंस। स्टेटमेंट देख लो, डिटरमाइन द कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन फोर्स F अलोंग टू गिवन डायरेक्शंस। हुण है क्वेश्चन सौखा पर थोड़ा थोड़ी प्रॉब्लम आऊगी बिकॉज ये +1 का काम आना, इस करके ना सीरीयस होकर काम करना शुरू करो तो प्रॉब्लम पूछो, अदरवाइज प्रॉपर समझ नहीं आना है। फिर थोड़ा अगे जाके जो जिथे टॉपिक औखा स्टार्ट होगा फिर थोड़ा इंटरस्ट, थोड़े तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने हैं, तो थोड़ा इंटरस्ट ये निकल जाना बाहर। चलो देखो, आपने फोर्स F ये कंपोनेंट्स फाइंड करने ने, एक कंपोनेंट P है, एक कंपोनेंट Q। गिवन डायरैक्शन, डायरैक्शन पहले भी कितना, डायरैक्शन आप एंगल में कहने, इन्हों के एंगल गिवन ने, एंगल्स ये अल्फा बना रहे, बीटा बना रहे। हुण ये किद्दां फाइंड करने आप, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर किया सीगा आपने कि रिजल्टेंट किवें कढ़ना है, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया आपने, ये अपने कोल रिजल्टेंट होगा, ये लेंथ। हम आर्टिकल प्रूव कर रहे हैं, आप किवें लभना है वो देखो ध्यान। एक पिछे किया सी आपने, दो लाइन्स जे पैरेलल होण, एक ट्रांसवर्सल उन्होंने कट कर रही है, एक लाइन कट कर रही है, तो ये दोनों एंगल बराबर होणगे। हुण ये तुहानूं आउणा चाहिए बिकॉज ये कर चुके हैं आप। इक्को साइड पाए ने एंगल, इन्हों कहने हैं आप कॉरसपोंडिंग एंगल्स, ये कॉरसपोंडिंग एंगल्स ने। ये पहला किया सी, एक हुंदा कि ए वाला एंगल तो जो Z बना रहा, सीधा Z बना रहा या इदा पुट्ठा Z बना रहा, जिस तरह मर्जी कर लो, ए वाला एंगल ये बराबर होगा। इनू कहने हैं आप ऑल्टरनेट एंगल्स। ध्यान रखना जिन्ने कंसैप्ट यूज़ होणगे जी, ये सारे मैं इकट्ठे नहीं दस सकता, इकट्ठी दसूँगा थोड़ा याद नहीं रहने हैं, तो जिमें जिमें आउणगे उवें उवें आप करी जावांगे। तुसीं अपनी कापी लिखी जाइए नाल कि ये कंसैप्ट किवें, तो जिन्ने क्वेश्चन करोगे इदा लिख के थोड़ा याद नहीं होने, जिन्नी प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा याद रहने कंसैप्ट सारे। तो न्यूमेरिकल करो सारे, तो एग्जाम्पल भी नाल करो, तो ये जोड़ा है एंगल बराबर होणगे, ये पुट्ठा Z बन रहा है, ये वाला एंगल जोड़ा होगा ये बराबर होगा। तो आ दो लाइन्स पैरेलल ने, पैरेलल क्यों ने, बिकॉज ये पैरेललोग्राम आ Z बनता, तो आ वाला एंगल ये बराबर होगा, ये बीटा होगा, इनू कहांगे आप ऑल्टरनेट एंगल्स। नेमिंग कर लो, इनू O कहता, ABC। इतों शुरू कर रहे हैं आप। लेट कंपोनेंट्स ऑफ F B, P एंड Q, F के कंपोनेंट्स जोड़े P ते Q मनने आपने, तो लैट किया आपने, लैट P एंड Q मेक्स एंगल अल्फा बीटा रिस्पैक्टिवली विद Q, सॉरी विद F। ये F ना बना रहे। नाउ जिहड़ा एंगल ABO आ, ABO इज इक्वल्स टू एंगल BOC।
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟ एंगल्स, ये बराबर ने। देयरफॉर एंगल ए बी ओ कितना आ गया जी अपने को बीटा, ये बीटा एंगल हो गया। हुण ट्राइंगल दे विच तिन्ने एंगल का सम जिहड़ा हुंदा हैगा वो 180 हुंदा। तो आह वाला एंगल किवें कड्डांगे, 180 विचों 2 माइनस कर देवांगे, ये एंगल आ जाएगा, ये बनेगा 180 पाई हुंदा, 180 विचों दोने जोड़ के आपां माइनस कर देवांगे, ये तीजा एंगल आ जाएगा। हुण +1 का काम है जी, +1 ट्रिग्नोमैट्री विच हुंदा सीगा जी, नोट पा लिओ, वो हुंदा सीगा जी साइन फार्मूला, साइन फार्मूला। ये किवें सीगा, कोई ट्राइंगल ए बी सी, ये एंगल ए आ, ए वाला एंगल बी आ, ए वाला एंगल सी आ, ए वाली लेंथ ए आ, यह लेंथ बी आ, यह लेंथ सी है। तो साइन फार्मूला की सीगा, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, ये बराबर होंगे सी तिने, ये साइन फार्मूला अपने को। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी, ये ट्राइंगल है आप ओ ए बी बाय साइन फार्मूला, बाय साइन फार्मूला, ये साइन फार्मूला अप्लाई किया, ये आऊगा जी ये साइड ओ ए साइड बटा फार्मूला किवें, जिहड़ी साइड आप लै रहे हैं ਉਹਦੇ बटा साइन की आऊगा सामने वाला एंगल, ये सामने एंगल ए है साइन ए पाया, बी के सामने एंगल की है कैपिटल बी है साइन बी पाया, सी के सामने की है एंगल कैपिटल सी तो साइन सी पाया। हुण ओ ए है, ओ ए सामने एंगल की है बीटा, तो नीचे साइन बीटा पावांगे, ओ ए अपॉन साइन बीटा, फिर लिया आपां ए बी, ए बी बटा ये सामने एंगल की है अल्फा, ये बन गया साइन अल्फा, ओ बी के सामने है एंगल साइन 180 पाई 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया। हुण ये तुहानूं पता होना चाहिए ओ ए की है, ओ ए की है अपने को मैगनीट्यूड ऑफ फोर्स, मैगनीट्यूड ऑफ फोर्स लेंथ में कहने आप मैगनीट्यूड, तो पी बराबर है पहला किया है अपने। हुण ये बेसिक गल्लां ने, ये तुहानूं नहीं याद रहणगियां, काम तो कन्फ्यूज़ हो जाऊगा जी, ये याद तां रहणगियां जे काम नाल नाल पढ़ोगे। हुण तां ऑनलाइन का फायदा ही बहुत है, ऑनलाइन का फायदा किवें हैगा, पहले तो क्लास जो टीचर ने बोलता तुसीं रिपीट, टीचर रिपीट, कई बच्चे नहीं करवाते सी रिपीट टीचर तो, बच्चे डरते थे कि टीचर को पूछण टीचर पता नहीं की कहूगा। हुण तो टीचर को किन्ने मर्जी बार रिपीट करवा सकते हो, बैकवर्ड कर लो रिवर्स कर लो वीडियो, टीचर को चाहे 50 बारी बुला लो, हुण तो ना टीचर अकेगा ना तुहानूं समझ भी आई जाऊगी, दोनों गल्लां होणगियां इहदे विच। इस वाली वीडियो का यह फायदा है तुसीं रिपीट कर करके देख सकते हैं, पर तुहाडी अपनी मेहनत आ। इहदे विच ओ ए जिहड़ा हैगा वो पी आ गया, पी बटा साइन बीटा, ए बी कितनी है, ए बी तो ओ सी बराबर आ, ओ सी किहदे बराबर आ क्यू, क्यू अपॉन साइन अल्फा, ओ बी देखो एफ, एफ अपॉन हुणे कितना होया साइन 180 माइनस थीटा कितना होंदा जी, ये साइन थीटा साइड कॉर्नर पिछे किया होया अपने, ये साइन थीटा होगा। हुण आ दो कंपेयर कर लो आपस, ये दो कंपेयर कितने छड्डता अपन, साइन बीटा जाके उधर लै गए, तो पी इक्वल्स टू एफ साइन बीटा बटा साइन अल्फा प्लस बीटा, ये पहला कंपोनेंट। जे आ वाले दो आप कंपेयर करिए, क्यों कटना आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लवांगे,
तो क्यू का फॉर्मूला आ गया एफ साइन अल्फा बटा साइन अल्फा प्लस बीटा। ये इस चैप्टर का मेन सैकेंड फॉर्मूला ही है। पहला फॉर्मूला आप रिजल्टेंट तो डायरैक्शन कढ़ी सी, दूजा फॉर्मूला ये जे फोर्स पता होवे अते एंगल पता होण पी ते क्यू किवें कढ़ने, पी ते क्यू चक के फॉर्मूले विच भरने, फॉर्मूले आपां याद रखने ने ते इहदे विच भर के अपना पी ते क्यू आ जाएगा। ये थोड़ा फॉर्मूला याद किवें करना हैगा वो चीज़ समझाउणी है तुहानूं। ये वाला फॉर्मूला आपां सौखे दिखना किवें याद करना। जिवें आ दो फोर्सिस सीगियां, आ पी आ क्यू आह एफ, ये एंगल अल्फा हैगा, आ बीटा एंगल। हुण ये फॉर्मूला आपां ने याद किवें करना वो करना। तो पी किवें कढ़ना, पहला एफ आऊगा ये याद रखना, साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल, दूजा एंगल लेना, मतलब पी का अपना एंगल कितना बनता है अल्फा, अल्फा नहीं लेना है, दूजा एंगल लेना बीटे वाला, साइन ऑफ बीटा नीचे टोटल एंगल कितना है अल्फा प्लस बीटा, नीचे साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। क्यू देखो ये मांगी पहले एफ आना, हूँ क्यू का अपना एंगल कितना बीटा, ये नहीं लेना आप, दूजा एंगल लेना, दूजा एंगल की बन गया अल्फा साइन अल्फा नीचे साइन ऑफ टोटल एंगल। जिहड़ी फोर्स कढ़नी है मतलब पी कढ़नी है तो वो वाला एंगल नहीं लेना है, दूजा एंगल लेना है। जे क्यू फोर्स करांगे तो बीटा लवांगे, जे पी फोर्स लवांगे सॉरी क्यू फोर्स करांगे तो अल्फा लवांगे, जे पी फोर्स लवांगे तो बीटा लवांगे, नीचे आप लेना है टोटल एंगल। बस ये फॉर्मूला जी, फॉर्मूले याद ने, डायग्राम सही बन गई अपना, तो इदा कह लो कि क्वेश्चन अपना 90% सॉल्व हो गया। बाकी तो कैलकुलेशनस करनी अपन। इनू समझने वास्ते आपां दो न्यूमेरिकल करते हैं, फिर तुहानूं होर ज़्यादा समझ आ जाऊगा। ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं आप, पहले एक सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं बोल रहा है तुसीं भी देख लो। रिजॉल्व अ फोर्स ऑफ 100 kg इंटू टू कंपोनेंट्स मेकिंग एंगल्स 60 डिग्री एंड 90 डिग्री विद इट ऑन ऑपोजिट साइड्स। देखो की कहा उन्होंने, हूँ स्टेटमेंट पढ़ ली, डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है हमेशा। बिना प्रैक्टिस तो डायग्राम नहीं बनानी आनी, तुहानूं समझ डायग्राम तां बनूगी जे प्रैक्टिस करोगे। रिजॉल्व मतलब हिस्से करने ने आपां ने, किन्ने कंपोनेंट्स का बनाने आप 100 kg फोर्स से दो कंपोनेंट, ये 100 kg फोर्स है जी, ये आपां ने दो कंपोनेंट्स बनाने। किवें मेकिंग एंगल 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ऑन द विद इट ऑन अपोजिट साइड। ये नाल एक का एंगल बनता है 60 डिग्री, बस 60 डिग्री है, एक का एंगल बनता है 90 डिग्री। समझियो ध्यान नाल, ये एंगल जिहड़ा हैगा इस फोर्स का एंगल कितना आ रहा 60 आ रहा, तो ये फोर्स का एंगल कितना लग रहा देखने को फोर्स का 90 है, पर यह डायग्राम गलत है। ये दोनों कंपोनेंट इक्को पासे आ गए, फोर्स से इक्को साइड कहांगे आप, इक्को साइड आ गए दोनों फोर्स इस कंपोनेंट के, इस फोर्स से दोनों इक्को साइड आ गई। पर स्टेटमेंट क्लीयरली मैंशन आ कि ऑन ऑपोजिट साइड, जे एक फोर्स आप इधर लई आ, दूजी फोर्स इधर दूजे पासे लैनी, इदां दी बनानी हैगी। फिर आप इधर बनावांगे, इनू पी मान लिया अपन, ये 90 एंगल। हूँ क्वेश्चन सौखा ही है, सिंपल है क्वेश्चन, पी एंगल सारे पता, फोर्स पता, मैं कर रहा वो देख लो। पी का फॉर्मूला की आऊगा फोर्स इंटू साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल कितना है 90, नीचे साइन ऑफ टोटल एंगल, टोटल कितना बनेगा 90 प्लस 60। बाकी सॉल्व करना, जो आ गया वो आंसर है। ये आ गया 100, साइन 90 1 हो गया,
बटा साइन 150 ये सॉल्व कर लवांगे आप। साइन 150 आ गया 180 माइनस 30 डिग्री। सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच साइन पॉजिटिव हुंदा, साइन 30 आ गया, साइन 30 हाफ हो गया, ये आ गया 200, ये 200 बन गया। हुण दूजी फोर्स क्यू कढ़ लवांगे इदां क्यू आएगा 100 साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल। क्यू दे नाल एंगल किहड़ा 90 नहीं लेना, दूजा एंगल लेना 60 आऊगा। क्यू साइन 60 डिग्री, नीचे साइन टोटल एंगल, टोटल कितना जी 90 प्लस 60। थोड़ा काम सौखा हो जाएगा ये। सौखा किवें, साइन 60 का √3/2 हो गया। हुण ये साइन 150 150 ये सॉल्व किया है, लोड़ नहीं सॉल्व करन दी। ये कितना कढ़िया आप आंसर हाफ, तो आंसर आ गया अपने को 100√3। पी फोर्स आ गई तो क्यू फोर्स आ गई, ये दो फोर्स आ गई। हुण ये थोड़ा गल ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐ नहीं है कि आप हमेशा सिंपल इदा क्वेश्चन आउणगे। जिहड़ा औखा क्वेश्चन आ ते सौखा क्वेश्चन, बस उन्हां 'च फर्क ये है। जिहड़ा क्वेश्चन सौखा होगा सारा डाटा दिता होगा, डाटा दिता की होया च फोर्स भी दिती, एंगल भी दिते हुए। जिहड़ा क्वेश्चन थोड़ा औखा होगा उहदे विच डाटा मान लो एक एंगल मिस कर देंगे, तो इहनूं लभण वास्ते कुछ ना कुछ हो दिता होगा। इदा क्वेश्चन औखा बनता है, मतलब दोनों एंगल मिस कर देंगे, ये दोनों एंगल कट्टण वास्ते कुछ हो कंडीशन दित्तियां होणगीਆਂ। मतलब एंगल भी पहलां फाइंड करांगे आपां अपने वालों, बाद च आपां फोर्स के कंपोनेंट फाइंड करांगे। बस औखे ते सौखे विच ये फर्क आ कि सौखे दे विच डाटा सीधा दिता हुंदा आपां नूं, ते औखे दे विच आपां नूं सीधा नहीं दिता हुंदा, कुछ चीज़ां मिस कर दिंदे ने, पहलां वो कड्ढणीਆਂ होंदियां ने, बाद च फॉर्मूला अप्लाई करना हुंदा अपने। चलो तां ही पहलां सौखे क्वेश्चन होणगे सॉल्व, तां ही हौली हौली औखे सॉल्व होने शुरू होणगे। हुण ये क्वेश्चन करन लगे आपां इस तो बाद, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैगा जी, पेपर दे विच बहुत वारी आया है। इहनूं आपां रब कर लाणे। तो नैक्सट क्वेश्चन कर लगे आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। स्टेटमेंट तुसीं पढ़ लो, मैं भी पढ़ रहा है। अ गिवन फोर्स आर इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स मेकिंग एंगल्स 45 डिग्री एंड थीटा विद इट। इफ द लेटर कंपोनेंट इज 2r upon √3 + 1 दैन फाइंड थीटा एंड अदर कंपोनेंट्स। पहला स्टेटमेंट समझते हैं, आप डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं की है। ये आर फोर्स होगी, मेरे दो कंपोनेंट कितने ने उन्होंने, एक पी आ, ये एंगल 45 बना रहा जी, एक क्यू आ, यदा एंगल हैगा थीटा। ये दो फोर्सेज ने अपने को। इस तो बाद दिता कि अपन द लेटर कंपोनेंट, जो बाद वाला कंपोनेंट हैगा जी वो कितना अपने को हेयर क्यू दिता है अपन 2r upon √3 + 1। हुण ये थोड़ा क्वेश्चन औखा करता, जे तो क्वेश्चन सिंपल होंदा वो आर भी दिता होना सी आपां नूं जी, अते दोनों एंगल गिवन होंदे अपन सीधे, फिर सीधे ने पिछे क्वेश्चन किया, फिर कम सौखा। हुण इहदे विच थोड़ी गल उलझा के पाती उन्होंने कि ये वाला एंगल दिता नहीं होया आपां नूं, एक फोर्स गिवन दूजी फोर्स लभणी अपने। चलो सॉल्व कर दें। फार्मूला यही है, बाकी अपना माइंड यूज़ करके आप क्वेश्चन सॉल्व करने। जो देखिए क्यू का फार्मूला की होगा, आलसो क्यू का फार्मूला होंदा अपने को पी आर पहला फोर्स लैनी है, फिर दूजा एंगल लेना है साइन 45, नीचे टोटल एंगल साइन थीटा + 45। क्यू की वैल्यू भरती अपने 2r upon √3 + 1। आर साइन 45 1/√2 हो गया जी, साइन थीटा + 45 डिग्री। ये आर कैंसल हो गया। हुण थोड़ा देखिए ध्यान नाल की कर रहे हैं आप, ये टर्म सारी चक के दूजे पासे लेके जा रहे हैं, तो ये वाली टर्म चक के आप इधर लेके जा रहे हैं। ये तो बन गया साइन ऑफ
थीटा प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू √3 + 1/2 √2। ਹੁਣ ਇਹ +1 ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ √3/2 × 1/√2 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 1/2 1/√2 ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਏ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਬਣੇਗਾ sin 60 √3/2 ਹੁੰਦਾ, cos 45 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1/√2 ਪਲੱਸ cos 60 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1/2 ਇੰਟੂ sin 45 sin A cos B cos A sin B sin A cos B प्लस cos A sin B। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ sin of A plus B ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ sin of A plus B। A ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 60 प्लस B कितना जी 45। ये बन गया sin 105 डिग्री। ये चीज़ आ गई अपनी। हूँ देखियो ध्यान ना किवें तो की बनाया अपने साइन ऑफ थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 105 डिग्री। ये आंसर हुण ये विचों थीटा कड्डांगे आपां। हुण दो तरीके ने कड्डण थीटा कड्डण दे, वो देख लो दोनों तरीके। एक तो सीधा कड्डांगे आपां ये विचों कि थीटा प्लस 45 डिग्री कितना आ गया 105 डिग्री। दिस इंप्लाई थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। एक तो आंसर आ गया। एक कड्डांगे आपां होर तरीके नालों किवें आलसो साइन थीटा प्लस 45 ये एंगल छोटा करांगे किवें साइन 105 डिग्री है जी। ये लिख सकते हैं आपां साइन 180 माइनस 75 डिग्री। 180 जब 75 घटावा 105 आ जाऊगा जी। ये बन गया साइन 180 माइनस थीटा बहुत बारी कर चुके हैं आप साइन 75 डिग्री आ गया। ये बन गया साइन थीटा प्लस 45। दिस इंप्लाइज थीटा प्लस 45 इज इक्वल्स टू 75। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये दो आंसर आ गए। थीटा 60 भी हो सकता, थीटा 30 भी हो सकता, दोनों आंसर ने। हुण इस तो बाद की कहा उन्होंने आपां ने दूजा कंपोनेंट फाइंड करना। हुण आपां पी फाइंड करना है तो दोनों वास्ते करांगे। जो थीटा 60 होगा वो वास्ते पी कितना होगा ये भी कड्डांगे। जो थीटा 30 डिग्री होगा ये वास्ते पी कितना होगा ये भी करांगे। ये दोनों वास्ते करांगे आपां। मैं करन लग्या वो तुसीं देख लो। इत्थे उपर ही कर लैंदे हैगे। जदों अपने कोल वैन थीटा होगा 60 डिग्री तो पी का फॉर्मूला की होगा, पहला फोर्स लेनी है आर, साइन दूजा एंगल लेना साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 45 डिग्री। फिर आ गया आर साइन 60 अपॉन साइन 60 प्लस 45 डिग्री। ये मैं रब करता जी। मैं लिख रहा थोड़ा पुराना काम तुसीं नोट कराया हो कापी। एक दी वैल्यू कड्ढी सी आपां। इहदा आंसर कड्ढा जी साइन ऑफ 60 प्लस 45 ये बनाया सी। तो इहदा आंसर यही है, सीधा लिख देंगे आप। और कोई लोड़ नहीं है कि साइन ए प्लस बी ला के साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, सीधा अपन आंसर पता है। तो ये थोड़ा आ जाएगा साइन 60 आ गया √3/2 बटा √3 + 1/2 √2 2 कट गया
ऊपर लै गए √3 √2 √6 हो गया r √6 अपॉन √3 + 1। ये पहला आंसर आया चलो थीटा 60 डिग्री है। हुण जदों अपने को वैन थीटा = 30 डिग्री तो P फोर्स आएगी r sin थीटा 60 भरता 30 भरता sin 30 डिग्री अपॉन sin 30 + 45। उन्हें कितना ही सी आपां ने 105 sin 105 तो sin 175 sin 75 दोनों बराबर ही सीगे। sin 75 का आंसर ये बराबर ही आऊगा ये हुणे लिखिया आपने, चाहे सॉल्व कर लो sin a + b ला के, पर वो कड्ढी है लोड़ नहीं सॉल्व करती अपन। हाँ ये मैं रब कर रहा तो ये आ गया sin 30 हाफ हो गया बटा ये आप कटिया √3 + 1/2 √2। ये आ गया √2r अपॉन √3 + 1। ये दो आंसर आ गए। एक क्वेश्चन होर करवाना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट तो वो देखो स्टेटमेंट देखो जी, P and Q are two components of given force and its line of action divides the angle between them in ratio 1:2. Prove that Q brackets F plus Q equals to P²। स्टेटमेंट वही डायग्राम बनाने की कोशिश करने पर डायग्राम की हैगी F फोर्स के दो कंपोनेंट्स ने, ये F फोर्स मेरे दो कंपोनेंट्स ने अपने को, एक P है एक Q है। ये किवें आ उन्होंने कहा इट्स लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन की होंदा, एक्शन होंदा जिस लाइन के लाइन ऑफ एक्शन होंदा हैगा जिस लाइन के उपर एक्शन हो रहा या जिस लाइन के उपर फोर्स लग रही है। ये लाइन उपर फोर्स लग रही है, इन्हों आप लाइन ऑफ एक्शन कहांगे। ये लाइन डिवाइड द एंगल बिटवीन दैम, जिहड़ा इन्हां विच एंगल आ इनू 1:2 च डिवाइड कर रही है। मतलब ये एक हिस्सा हैगा, ये दो हिस्से ने 1:2 च डिवाइड कर रही है। मतलब सिंपल जी गल ना इतना कह लो, चाहे ये एंगल अल्फा हैगा, ये फिर 2α हो। चैक भी कर लो रेशो कितनी आ रही है एंगल की 1:2। तो अपने यार रिजल्ट प्रूव करना, रिजल्ट का प्रूव हो जाएगा। मेन डायग्राम है, बाकी काम सौखा सारा किमें P फोर्स करांगे Q फोर्स करांगे, बाकी सॉल्व करांगे, अपना आंसर बन जाऊगा। चलो ये लाने वाला आप लैट एंगल्स B अल्फा एंड 2α, एक अल्फा एक 2α ले लिया। नाउ P का फॉर्मूला की बनेगा, पहला फोर्स लैनी है साइन ऑफ दूजा एंगल, दूसरा एंगल साइन 2α, नीचे साइन ऑफ टोटल एंगल कितना जी अल्फा + 2α। ये बन गया F साइन ऑफ 2α अपॉन साइन 3α। इनू यहीं पे रहना है। एंड Q की होगा, पहला फोर्स आएगी जी, उस तो बाद ये एंगल दूजा एंगल लेना Q मतलब साइन अल्फा अपॉन टोटल एंगल साइन 3α। ये आ गया अपने। हुण जो आप रिजल्ट प्रूव करना है आप वो टर्म लै लेने हैं, बाकी अपना आंसर आप ही बन जाऊगा। आप लैफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लैफ्ट हैंड साइड हैगी जी अपने को Q × F + Q। ये सॉल्व करते हैं आप। Q पता F में F रखना, अपने Q की वैल्यू भरती जी अपने हैगी F साइन अल्फा बटा साइन 3α F +
क्यू एफ साइन अल्फा अपॉन साइन 3 अल्फा। इनू सॉल्व करांगे, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी यूज़ करांगे, आप ही आंसर बन जाएगा जी। ये बनाना अपने ये रब कर लें। ये आ गया एफ साइन अल्फा अपॉन साइन 3 अल्फा। एफ स्केयर कर लो, एफ कॉमन कर लो, स्केयर बन जाएगा। इधर एलसीएम ले लो, साइन 3 अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन साइन 3 अल्फा। ये आ गया एफ स्केयर साइन अल्फा अपॉन साइन स्केयर 3 अल्फा, साइन स्केयर बना लिया अपने। हुण ये पिछे किया अपन साइन 3 अल्फा कि लास्ट लैक्चर किया यूज़ किया फॉर्मूला अपने। ये होंगे 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा प्लस साइन अल्फा। ये आ गया एफ स्केयर साइन अल्फा अपॉन साइन स्केयर 3 अल्फा। ये जोड़ दो जी, 4 4 आ जाएगा। ये 4 साइन अल्फा बाहर कढ़ लिया अपने। ये बन गया 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा। बाकी सॉल्व भी करना आप। ये बन गया अपने को एफ स्केयर 4 साइन स्केयर अल्फा कॉस स्केयर अल्फा अपॉन साइन स्केयर 3 अल्फा। जे गौर ना देखिए की है जी, ये मैं उपर ही कर रही हूँ। ये हैगा अपने कोल एफ स्केयर, ये बन गया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा का होल स्केयर बटा साइन स्केयर 3 अल्फा। जे गौर ना देखिए आप, ये साइन 2 अल्फा होंगे जी। ये बन गया एफ स्केयर साइन स्केयर 2 अल्फा अपॉन साइन स्केयर 3 अल्फा। स्केयर कढ़ लो बाहर ये विचों, एफ साइन 2 अल्फा अपॉन साइन 3 अल्फा का होल स्केयर। ये गौर ना देखिए आप, यह पी है, ये पी का स्केयर बन गया इक्वल्स टू पी स्केयर। ये अपने को राइट हैंड साइड बन गई इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चलो ठीक है जी, अज यही काम करवाना सीगा। कोई प्रॉब्लम होवे तो व्हाट्सएप पर पूछ लियो। थैंक यू।